Hey friends, good morning. In last chapter we discussed about the different markets according to the study of economics. In this chapter we are going to study about the Indian economy. In that first we studied about the ancient India, then after Indian economy before independence, then after we study about Indian economy after independence and characteristics of इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये चैप्टर में हमें बहुत सारे स्टेटिस्टिकल डेटाज स्टडी करने हैं, जिनमें से कुछ पुराने डेटाज हैं जिसको हमें नेट के ऊपर से सर्च करके लेटेस्ट फिगर क्या है वो एक बार खाली इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो ये चैप्टर में हमें क्या देखना है मेन, तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। It is the largest democracy in the world, demonstrating unity among diversity of various languages, caste, creed, religions, cultures, traditions, and so on. Thus, India has a unique identity. तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके साथ यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ट्रेडिशन, फूड, क्लोथ, हैबिट्स। उसके बावजूद इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया वॉज नेम भारत इन द एंशियंट टाइम्स आफ्टर द नेम ऑफ द सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड हिज क्वीन शकुंतला। तो भरत राजा के ऊपर से हमारी कंट्री का एक नाम भारत भी पड़ा है। द कंट्री वॉज extremely prosperous and known for its agriculture, traditional crafts, and trade, which attract many foreigners for the purpose of trade. तो 17th century तक इंडिया वॉज नॉन एज द गोल्डन बर्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ही थी, फॉरेन से लोग यहाँ पे आते थे। फर्स्ट 1498 में वास्को दी गामा इंडिया आया। वाई ही केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जो थी वो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में हम लोग सेल करते थे। However, the foreigners who came for trade started ruling over us in order to exploit our rich resources, and thus they ruined our ancient economic and cultural heritage both. Between 1526 to 1858, that is between the 16th and 19th centuries, the Mughals ruled the entire nation or some regions. Besides, the French, the Portuguese, and the Dutch also ruled over some part of for some times. And finally, the British established their rule over India almost from 1757 Battle of Plassey to 1947 freedom. So during this more than 200 years period, Britishers rule on us. After the winning of Battle of Plassey, 1757, 1764 Battle of Buxar to 1857 revolt. Within these 100 years, they ruled all over India after gaining power in Bengal region. From 1857 to 1947, many movements held. Uh, the period from 1757 to 1858 is known as the period of the East India Company Raj, which is in local language word used Raj means rule, as this company of British origin came here to trade but also established its rule, and later from after the revolt of 1857, from 1858 till the midnight of 14th August 1947, the British established its government in इंडिया। तो ये जब ब्रिटिश रूल चालू हुआ तो हमारी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी थी, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो सब रूइन हो गया, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। हमारा जो ओरिजिनल कल्चर था वो एक्चुअली में देखने जाए तो विलेज बेस्ड था, क्योंकि हमारे जितने भी विलेजेस थे वो सेल्फ डिपेंडेबल थे। कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, सबको
खुद काम मिल जाता था, वहाँ से वो अर्न कर लेते थे। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो इजीली होती थी पहले के ज़माने में। बट आफ्टर ब्रिटिश रूल दिस ऑल was collapsed and due to that we suffered lots of problem। तो पहले ये देख लेते कि एंशियंट इंडिया में किस तरह की सिचुएशन थी। So the Indian civilization, which is known to have emerged from the influences of the invention of the Aryan tribe and Indus Valley civilization, and which is also called the Harappan civilization, is identified as the ancient age, and the remains of the civilization were first found at Harappa and Mohenjo-daro. In Gujarat, we see the remains at Lothal and Dholavira। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो आर्यन के इंडिया में आने के बाद, जब उन्होंने नॉर्थ इंडिया को कवर कर लिया और द्रविडियन जो भी थे उनसे पहले जो ट्राइब्स आई थी वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गई, तो पूरा नॉर्थ इंडिया आर्यन के कंट्रोल में था। और वहाँ से जो सिविलाइजेशन चालू हुई करीबन 2500 ईयर्स टू 3000 ईयर्स एगो, विच इज़ नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। This civilization gives evidence of organization, prosperity, urban planning and development। तो हमारी जो ये पुरानी सिविलाइजेशन थी वहाँ से हमें पता चला कि हमारे जो पुराने लोग थे, एंशियंट लोग थे, वो कितने टैलेंटेड थे, कितने एडवांस थे। From the viewpoint of the manufacturing activity, India was known for its cloth, muslin, jute, indigo from pre-British times, यानी जो ब्रिटिशर्स आए उससे पहले का टाइम। विद द ब्रिटिश इन्वेंशन इंडिया गॉट टी प्लांटेशंस एंड इवन टुडे इंडिया इज नोन फॉर हर टी एक्सपोर्ट। In a way, before the British period, India was known to have been rich in agriculture, industries and civilization। तो ब्रिटिशर्स यहाँ ट्रेड करने आए थे, ट्रेड करने के साथ में यहाँ रूल करने लगे। फिर कंपलसरी हमारे जो भी पेशेंट है, फार्मर थे, उनके पास से रॉ मटेरियल जो उनको फैक्ट्री के इंडस्ट्री के लिए चाहिए था वही कंपलसरी वो कल्टीवेट कराते थे। इस हिसाब से हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट था, वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे किसी को काम नहीं मिल रहा है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग लॉज बना दिए थे, उसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स कॉस्टली हो गई थी। यहाँ से वो कम रेट में रॉ मटेरियल परचेस करते थे, ब्रिटेन बेचते थे, वहाँ से फिनिश गुड यहाँ पे सेल करते थे। जो टैक्स सिस्टम था वो उनकी फेवर में था। तो ये सब वजह से इंडिया की प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो गई, और जो कंट्री वर्ल्ड का प्रॉस्परस कंट्री था वो वर्ल्ड का पुअर कंट्री बन गया। तो पहले के टाइम में क्या था वो हम देखते हैं। लेट अस लुक एट some of the important economic aspects of India in the pre-British and the ancient time। ब्रिटिश से आने से पहले कैसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था वो एक हम नज़र कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एंशिएंट इंडिया वाज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल नेशन। तो पहले से ही इंडिया एक एग्रीकल्चर नेशन है। द इकोनॉमी वाज मेनली रूरल इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी लोग रहते थे वो छोटे छोटे गांव में, विलेजेस में रहते थे। हाउएवर सम बेसिक इंडस्ट्रीज आल्सो एग्जिस्टेड एंड द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वेर बोथ प्रॉस्परस। तो पहले हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर। ये तीन सेक्टर जो हैं वो हर एक इकोनॉमी में, इकोनॉमी की स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीन सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज। ये आप मेरे ख्याल से 6-7 स्टैंडर्ड से आप ये स्टडी करते आ रहे हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है वो कैसे पता चलेगा। तो उसकी इकोनॉमी को ये तीन सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, यानी जहाँ एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग एंगेज हैं, तो बट ऑब्वियसली वो एक डेवलपिंग नेशन होगा। और इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर से आउटपुट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो एक डेवलप नेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वो इंडस्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर में एंगेज है। इसके बारे में हम डिटेल में
डिस्कस करेंगे, पर अभी हम एंशियंट इंडिया में क्या था वो देख लेते हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज प्रॉस्परस एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स वेर ग्रोन. Villages were self-reliant and basic necessities like grain, vegetables, fruits, clothes, shoes, etc. were produced in the village economy, as well as cattle rearing and dairy farming were also undertaken. Thus village life was happy. तो वो टाइम पे मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे. सबको अपने हिसाब से, पॉपुलेशन भी कम थी, ये भी एक फैक्टर है. और सब अपने हिसाब से अपनी जो भी नेसेसरी कमोडिटी प्रोडक्ट चाहिए थी वो एग्रीकल्चर थ्रू वो लोग बना लेते थे. और साथ में एग्रीकल्चर के साथ में कैटल रेयरिंग और डेयरी फार्मिंग भी एक्टिविटी होती थी. तो एग्रीकल्चर वॉज द प्रॉस्परस सेक्टर ऑफ एंशियंट इंडिया. अब इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन राय चौधरी, प्रायर टू 19th century, इंडिया वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ सम आइटम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसी कमोडिटी, कुछ ऐसी प्रोडक्ट थी जिसमें इंडिया वॉज अ प्रोमिनेंट सेंटर. इंडिया वॉज नोन फॉर कॉटन, जूट, मसलिन, वूल, आइडल्स मेकिंग, इंडिगो. इंडिगो एक क्रॉप है जो क्लोथ को कलर करने में काम में आता था. ब्लू कलर इसमें से बनता था. टेराकोटा, अर्थनवेयर एक्सेट्रा, सम ऑफ दिस गुड्स वेयर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. तो इसमें से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ थी, जहाँ पे मशीन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. और लास्ट जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसमें इवन बिफोर 600 BC इंडिया हैड सिस्टम ऑफ मिंटिंग मेटल कॉइन्स. तो 600 BC से पहले इंडिया में कॉइन मिंट होते थे. She had a wonderful system of town planning and sewage, stable political system, unity among people. Because of this, trade in agriculture goods and manufactured goods was prosperous. Evidence of these are found at Lothal. तो लोथल में से हमें ये प्रूफ मिला है कि वो टाइम पे कॉइन मिंटिंग करने की इंडस्ट्रीज़, ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में हुआ करती थी. तो हम बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर भी कुछ लेवल तक इंडिया का डेवलप था. और हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो भी अच्छी थी. टाउन प्लानिंग होते थे, सुवेज सिस्टम जो होती थी वो भी अच्छी थी. तो सर्विस सेक्टर का भी इम्पोर्टेंस वो टाइम पे था. अब नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या थी, तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एंग्यूज मेडिसन, India was extremely prosperous with share of 25% of the world wealth during the time of Maurya dynasty. तो जब मौर्य यहाँ पे रूल करते थे तब वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी में इंडिया का पार्टिसिपेशन 25% था. 1/4 पार्टिसिपेशन खाली इंडिया का था. तो ये परसेंटेज हमें दिखाते हैं कि इंडिया वो टाइम पे कितना प्रॉस्परस था. ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट रीजन्स ऑफ द geographical area of present India were under one rule, Ashok, the Chakravarti Samrat Ashok. During the Mughal rule, India commanded almost 90% of the wealth of southern Asian region, and high taxes and excises were also generated. During the rule of Aurangzeb around 1700 AD, the national income of India was 10 crore pounds. Actually, the foreigners came to India for her riches only. तो जब औरंगज़ेब मुग़ल रूलर था 1700 AD में, वो टाइम पे इंडिया की नेशनल इनकम थी 10 करोड़ पाउंड्स. एंड दिस वाज द रीज़न वाई दिस यूरोपियन अट्रैक्ट टू आवर कंट्री. थस द एंशियंट एज वाज अ गोल्डन एज. तो पहले का जो हमारा टाइम था वो गोल्डन एज इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो टाइम पे इंडिया इतना प्रॉस्परस था, इंडिया में इतना मनी था कि जिसकी वजह से फॉरेन से लोग हमारी कंट्री में आते थे. तो ये था हमारा एंशियंट स्टोरी. अब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ क्या हुआ, यानी कि ब्रिटिश रूल टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, वो एक हम देख लेते हैं.
तो इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द वेस्टर्न रूलर्स फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश came to India getting attracted by her riches. India had wealth, rich sculptures and cohesive social setup. India was famous for trade in cotton, muslin, indigo, species and metallurgy. मीन्स के जो कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास है वो ये जो मेटल में से जो भी प्रोडक्ट बनाते थे वो. However, during the time there were conflict among the foreign rulers also to establish their own power over India. ये पोर्टुगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिश ये आपस में अंदर अंदर लड़ने लगे क्योंकि उनको यहाँ पे इंडिया पे अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करनी थी. When the British established dominance over resources were exploited, तो बैटल ऑफ ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो बैटल हुई थी, मैसूर बैटल आई थिंक उसको बोला जाता है, वो बैटल में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को, ये 2 बार फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुई थी, वो दोनों बार ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था और उसके बाद इंडिया में ब्रिटिश डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ था. अब जब ब्रिटिश डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ तो ओवर रिसोर्स वेर एक्सप्लॉइटेड, पॉवर्टी इंक्रीज एंड द एंशिएंट रिचेस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इरोडिंग. तो जैसे ही ब्रिटिश रूल यहाँ पे चालू हुआ तो धीरे धीरे करके इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो कम होने लगी क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे सबको हैरेस करते थे. हाउएवर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अटेंड द ड्यूरिंग ब्रिटिश बहुत सारे चेंजेस भी हुए. एक तो रेलवे चालू हुआ, तो ब्रिटिश सेटअप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड विद द फर्स्ट रेल दैट रन बिटवीन बोरीबंदर प्रेजेंट डे CST एंड ठाणे ऑन 16 अप्रैल 1853. By 1947 India had rail network of 53,000 km benefiting a population of 68 lakhs. तो ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे चालू की थी रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम पे. तो ये एक्चुअली में रेलवे लाइन हमारे लिए नहीं थी, ब्रिटिशर्स को अपने ट्रेड को स्पीड देने के लिए उन्होंने ये रेलवे लाइन वगैरह चालू किया था. पर आफ्टर इंडिपेंडेंट वो बेनिफिट हमें मिला. फिर रोडवेज, तो द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ गुड लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया. दे सेटअप द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD under which significant basic utilities were created. By the end of 19th century there were a total of 278,420 km of roads which increased to 447,105 km by 1943, of which 32% were concrete पक्का रोड एंड 68% were कच्चा रोड. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे रोड्स बनाए. ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो उनके बेनिफिट के लिए था. देन आफ्टर दे स्टार्टेड बैंक्स. तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स केम इनटू बीइंग इन इंडिया फ्रॉम 1770 एंड बाय 1946 देयर वर मोर देन 700 बैंक्स इन इंडिया. The Reserve Bank of India RBI, which is the apex bank today, was set up in 1935. 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी. उससे पहले 1770 में बैंक स्टार्ट हो गई थी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की. वो 1946 तक 700 बैंक्स इंडिया में थी प्राइवेट सेक्टर की. फिर सोशल स्ट्रक्चर, तो सर्टेन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस वर अबोलाइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो उससे पहले हमारा जो कल्चर है वो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, यानी पुराने ख्यालों वाला. और इसके अंदर बहुत सारे एविल्स भी होते थे. रिलीजियन के नाम पे लोगों को हैरेस करना. तो ये बहुत सारे जो एविल्स, सोशल एविल्स थे, वो ब्रिटिश टाइम में इंडिया में बंद हो गए. फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड. तो पहले के ज़माने में अगर लड़की होती थी तो उसको मार दिया जाता था. फिर सती प्रथा करके एक प्रथा थी जिसमें हस्बैंड की डेथ हो जाए
तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ मर जाना है बाय फोर्स। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा चेंज लाया। उसके पीछे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, ये इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी उसके पीछे। फिर एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी, तो इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यूज़। तो यहाँ पे ये एक डाउनग्रेड में हमारा जा रहा था एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टैक्सेस बहुत हाई रखे थे हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे उनके लिए। द सिस्टम ऑफ ज़मींदारी मीन्स के लैंडलॉर्डशिप एंड अदर एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। तो ये ज़मींदारी सिस्टम चालू हो गई थी। लैंडलॉर्ड होता था, जो फार्मर थे उनके पास कोई खुद की लैंड नहीं होती थी। There was exploitation of several types and poverty in this sector started increasing, क्योंकि जितना काम करते थे उसके सामने कुछ पैसा मिलता नहीं था, इसलिए लोग और गरीब होने लगे। To give an example, after industrial revolution in Britain, the British made Indian farmer grow more indigo to fulfill the need of their textile industries. However, if farmer had taken a loan to grow indigo and incur losses, the British government did not waive off their loans and the farmers started incurring and accumulating debts. तो यहाँ पे इंडिगो कंपलसरी ग्रो कराते थे, उसके लिए हमारे फार्मर्स लोन्स वगैरह लेते थे। अगर क्रॉप्स फेल हो जाता था तो उसके बदले में उनको कोई रिकवरी नहीं मिलती थी, कोई उनका प्रोटेक्शन नहीं था। इसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स थे वो और गरीब होने लगे। फिर लैंड रेवेन्यू, तो द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द किंग इन इंडिया एंड विद दैट ऑल्सो गॉट द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम ओनर ऑफ फार्मिंग लैंड्स। ये एक्चुअली में चालू हुआ था 1764 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ के बाद सबसे पहले बंगाल के दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आए थे। लेटर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड लैंड रेवेन्यूज फ्रॉम द फार्मर्स थ्रू द जमींदार, जमींदार के थ्रू वो फार्मर के पास से लैंड रेवेन्यू यानी एक टाइप का टैक्स बोलते हैं वो लेते थे। द गवर्नमेंट पनिश द फार्मर हु फेल टू गिव रेवेन्यूज बाय कॉन्फिस्केटिंग देयर लैंड। उनको पनिश देती थी अगर कोई नहीं टैक्स भर पाता, रेवेन्यू नहीं भर सकता था, तो उनकी जो लैंड है वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे। बाय चार्जिंग फाइन्स एंड सो ऑन, उनके ऊपर अलग अलग पेनल्टी लगाते थे। लैंड रेवेन्यूज वेर एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर। ये जो लैंड रेवेन्यू थी वो इतनी हाई थी कि जो प्रोडक्शन था टोटल उसका हाफ से यानी 60% जितना तो रेवेन्यू देना पड़ता था। तो अभी इसमें बचेगा क्या, क्या सेल होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या घर चलाएंगे, ये सिचुएशन थी। एक था हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस वो हाई थे। तो अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी's calculations in 1876, the rich paid about 8% of the national income as taxes, while the Indians who were poor were made to pay 15% of the national income as taxes. तो दादा भाई नौरोजी ने ये स्टडी किया था 1876 में कि जो रिच थे, पैसे वाले लोग थे, वो 8% ही देते थे नेशनल इनकम में अपना टैक्स, और जो गरीब लोग थे, जो फार्मर्स थे, उनको 15% देना पड़ता था। फिर हाई रेट्स ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स और एक्साइज के भी रेट्स बहुत हाई थे। तो हाई एक्साइज वॉज कलेक्टेड ऑन मैचेस, sugar, steel and silver and all such commodities. Though salt was easily available in India, the British termed as illegal the production of salt by Indians on seashore, and they monopolized salt trade, imported salt to India by levying high custom duties and thus made it an expensive commodity for poor Indians. और इसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च की थी 1930 में टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट लॉ। वो आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है।
To protest against the high excise duties on salt, Gandhiji started the salt satyagraha with the Dandi March. High duties up to 15%, 15% तक वो लोग टैक्स लगाते थे, were imposed on cotton cloth exports from India, so that Indian cotton industry received a setback. अब जब इतना 15% ड्यूटी भरनी है तो वो कॉटन की प्राइस क्या होगी इंटरनेशनल मार्केट में, और इतना कॉस्टली कॉटन कौन परचेस करेगा, इसलिए जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो डाउनफॉल में आ गई. Whereas the cotton cloth imports from Manchester in England came to India at much lower import tariffs of only about 2.5%. अब जो मैनचेस्टर इंग्लैंड से जो क्लोथ्स यहाँ पे आ रहा है उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो खाली 2.5% है, और हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो हमारा कॉटन है उसके ऊपर 15% है. द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपोर्ट India's long staple cotton to England and sell its manufactured cloth in India. तो कैलकुलेशन किया था कि यहाँ से कॉटन खाली इंग्लैंड में ही जाना चाहिए और वहाँ से जो क्लोथ प्रोड्यूस होता है वो सेल करने के लिए उनको इंडिया जैसा बिग मार्केट मिल गया था. Thus India's raw material were exploited so that British industries could thrive at the cost of Indian industry. तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई उसके पीछे का जो रीज़न था वो था हमारी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करके वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे थे. अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी थी, तो द पीरियड फ्रॉम 1750 to 1830 वाज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. कहाँ पे, तो ब्रिटेन में. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बाय that time started establishing rule in India, and in 1858 the British government established its rule. क्योंकि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो रिवोल्ट के रिजल्ट थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था इंडिया पे वो डिक्लाइन हो गया, और उसके बदले अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली डिसीजन लेगी इंडिया के रिगार्डिंग कि यहाँ पे अभी कोई वाइस रॉय नहीं होगा, गवर्नर जनरल उसके बदले यहाँ पे गवर्नर जनरल कोई नहीं होगा. अब ब्रिटेन से वाइसरॉय इंडिया में आएंगे और जो भी डिसीजन लेना है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस होगा. इस हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडोप्टेड अ पॉलिसी दैट मेड द इंडियन इन्वेस्टर लॉस कॉन्फिडेंस. अब उन्होंने जो पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई की वो ऐसी की कि इंडिया का कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, यानी हमारे जो इन्वेस्टर थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका कॉन्फिडेंस एकदम से टूट गया. द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज lopsided in character in the sense that only some light and consumer goods industries were started and no attention was given to the machine manufacturing and heavy engineering and heavy chemical industries and other basic and key industries. तो कुछ छोटे मोटे बिजनेस हमें करने देते थे वो लोग, बाकी जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज थी जो की इंडस्ट्रीज बोलते हैं इकोनॉमी की, उनका सबका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था. The policy was to send raw material from India to Britain and sell goods made in Britain to India. तो मेन उनकी जो पॉलिसी वो क्या थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि यहाँ से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन भेजना है और वहाँ से जो फिनिश गुड आता है उसको यहाँ पे सेल करना है. अब रॉ मटेरियल जो यहाँ से वो जाएगा उसकी प्राइस लो होती है और वहाँ से जो फिनिश गुड आता था वो हाई प्राइस में यहाँ पे सेल करते थे. इसके लिए यहाँ पे उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता था. फिर होता था इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन. तो वो क्या था, तो in order to benefit their own economy, the East India Company and later the British government adopted policies which exploited Indian resources and promoted British industries. Indian agriculture was also exploited by high land revenue. तो उनका मेन जो कॉन्सेप्ट था वो था कि इंडियन इकोनॉमी को पूरे रूइन कर देना है, पूरा कोलैप्स कर देना है और कम्प्लीटली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेबल हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, और उन्होंने वही किया. तो उसकी वजह से हमारा जो मेन सेक्टर था इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो कम्प्लीटली
हाई रेवेन्यू की वजह से एक्सप्लॉइट हो गया, कोलैप्स हो गया। आर्टिशियन के साथ में भी अच्छा नहीं हुआ, एक्सप्लोटेशन ऑफ आर्टिशियंस। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लोटेड आर्टिशियंस बाय ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम देम एट अप टू 50% to 40% लोअर प्राइजेस एंड सोल्ड देम इन द वर्ल्ड एट हायर प्राइजेस एंड मेड हाई प्रॉफिट्स। तो हमारे लोगों के पास से कम प्राइस में परचेस करते थे और इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस से सेल करते थे, उसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। बिसाइड्स आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल दे स्टार्टेड सेलिंग इन इंडिया चीप गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एंड रूइंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्रीज से बना हुआ जो भी गुड्स था, क्योंकि वो मशीन के ऊपर ज़्यादा बनता था इसलिए वो सस्ता होता था, कम उसका कॉस्ट प्राइस होता था, तो उसकी वजह से वो ब्रिटिश प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते थे। अब जब चीपर प्रोडक्ट मिलेगी तो कॉस्टली कोई क्यों लेगा, और उसकी वजह से जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। और इन्वेस्टमेंट पैटर्न, तो द ब्रिटिश मेड ओनली दोज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया विच बेनिफिटेड ब्रिटेन। वो यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट करते थे जिससे ब्रिटेन को बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज एंड रोड नेटवर्क्स वे क्रिएटेड टू हेल्प मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज। रेलवे के पीछे इन्वेस्टमेंट किया, रोड बनाने के पीछे इन्वेस्टमेंट किया, पर क्यों किया? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी वो स्पीड से हो। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वॉज मेड टू एजुकेट person to run the British administration, and Indians were prevented from getting technical education. उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन के पीछे इन्वेस्टमेंट किया। मेरे ख्याल से लॉर्ड मैक्यूली ने ये सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो उसका रीज़न क्या था कि उनको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉई चाहिए थे। हम उनको यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो टेक्निकल एजुकेशन जो ओरिजिनल हमारा टैलेंट था, जो जिसकी वजह से इंडिया प्रॉस्परस था, वो उससे हम लोग दूर हो गए। दे स्टार्टेड कॉलेजेस फ्रॉम मेडिसिन एंड सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर देयर बेनिफिट्स। दे नीडेड सिविल इंजीनियर्स फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया एंड इन ब्रिटेन। They did not promote studies in science and technology in India. तो यहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग चालू की, कॉलेजेस चालू की, पर साइंस और टेक्नोलॉजी को उन्होंने यहाँ पे प्रमोट नहीं किया। थस दे मेड सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो बहुत ही उनका कैलकुलेशन था कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उन्होंने वैसे इन्वेस्ट किया जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको खुद को हो। अब पेमेंट बर्डन था, तो वेरियस पेमेंट्स वेर मेड टू ब्रिटिश फ्रॉम इंडियाज इनकम बिसाइड्स ह्यूज सैलरीज ऑफ ब्रिटिश पर्सनल। तो उनके जो एम्प्लॉई थे, ब्रिटिश एम्प्लॉई थे, उनको ज़्यादा सैलरी मिलता था हमारे इंडियंस के मुकाबले। दिस इंक्लूड होम चार्जेस। देयर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया पेड टूवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, war expenses, pensions to retired officers, and other expenses accrued by Britain toward maintenance of her colony. These were known as home charges and were paid for almost entirely by India. तो उनके जितने भी एक्सपेंस थे उसका चार्ज हम लोग पे करते थे, उसकी अमाउंट हम लोग देते थे। द होम चार्जेस वर मेड ऑफ 3 components: interest payments for debts incurred in maintaining Indian colony, interest on the railways, and civil and military charges. Finally, when British left India in 1947, Indian agriculture industry and trade were devastated. A country which was once highly prosperous was improvised. तो इस हिसाब से हमारे ऊपर जो कंट्री वर्ल्ड का प्रॉस्परस कंट्री था, गोल्डन बर्ड जिसको बोला जाता था, वो कंट्री अब डेबिटर हो गया। यानी हमारे ऊपर अभी पैसे चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं बचा था। क्योंकि 1947 तक ब्रिटिशर्स यहाँ की जितना भी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी थी वो सब ब्रिटेन
शिफ्ट कर चुके थे। ये थी स्टोरी इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद अब तक जो हमारी सिचुएशन है वो किस हिसाब से ये इम्प्रूवमेंट हुआ और आगे हमें कितना वर्क करना बाकी है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है।